ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ তেজপুৰ এন ঘগৰা চাহ বাগিচাত ৰবিবাৰে উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ঋতুৰাজ সিনহা। ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকজনে চাহ বাগিচাখনত থকা তেজপুৰ ঘগৰা চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বাগিচা অঞ্চলসমূহত প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে চলি আছে সেয়া বুজ লয়। ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ঋতুৰাজ সিনহাক সংগ দিয়ে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাগৰাকী তেজপুৰ এন ঘগৰা চাহ বাগিচাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে স্থানীয় মহিলাসকলে আদিবাসী গামোচাৰে আদৰণি জনায় আৰু ঝুমুৰ দলে নৃত্য গীত কৰি বিদ্যালয়খনলৈ আদৰি লৈ যায়। উক্ত সময়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায়, তেজপুৰ ঘগৰা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পলাশ নাথ, শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ডলি চুৰিন আৰু মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পূৰবী বৰুৱা উপস্থিত থাকে। 2024 দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ঋতুৰাজ সিনহাই কয়, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, নীতিশ কুমাৰ, মমতা বেনাৰ্জী নে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ হ'ল নেকি? দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 9 বছৰ দেশৰ সেৱা কৰিলে। 24 ঘণ্টা 365 দিন একেৰাহে নিষ্ঠা সহকাৰে ৰাইজৰ সেৱাৰ হকে কাম কৰি গৈছে। বিৰোধীসকল একত্ৰিত হৈছে যদিও তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব। বিৰোধীৰ নেতাও নাই, নীতিও নাই। ৰাহুল গান্ধী 50 বছৰীয়া এজন বাবা। এইগৰাকী বাবা ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও পৰিপক্ক হোৱা নাই। पहले आप मेरे को बताओ, ये डिसाइड हो गया कि सामने से राहुल गांधी रहेगा, प्रियंका गांधी रहेगा, अरविंद केजरीवाल रहेगा, नीतीश कुमार रहेगा या और कोई ममता बनर्जी होंगे या और कोई होंगे? डिसाइड हुआ? देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल देश का सेवा किए। 24 घंटा 365 दिन बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए, बिना बीमार हुए उन्होंने देश का सेवा का काम किया। अभी जो सामने से जो ऑपोजिशन गठबंधन करने का बात कर रहा है, ये लोग तो यही तय नहीं कर पा रहा है कि इनका नेता कौन है। अब नेता तय करना है, उसके बाद क्या नीति है, क्या एजेंडा पे साथ आ रहा है। किसी का कोई बताया किसी ने कि क्या एजेंडा लेके ये कोalition आ रहा है? इन लोगों के पास ना नेता है ना नीति है, खाली एक ही चीज़ है, मोदी फोबिया, मोदी का डर, मोदी जो कर रहे हैं उसका विरोध करना। देश का जनता बहुत समझदार है। देश का जनता जानता है कि अगर देश में करप्शन फ्री, परिवारवाद फ्री, गरीब कल्याण का सरकार चलाना है, ईमानदार सरकार चलाना है, तो मोदी को लाना है। देखिए, राहुल गांधी जी 55 साल का बाबा है। 55 साल का एज में अभी भी बाबा है, और वो बाबा है, वो मतलब अभी भी पॉलिटिक्स में मैच्योर हो रहे हैं, ऐसा वो खुद बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी आधा समय जो बात बोलते हैं वो देश के मन को पहचान नहीं पाते। ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত সোধা আন এক প্ৰশ্ন উত্তৰত তেখেতে কয়, আমাৰ আদৰ্শ আছে যে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰুৱা কথা বাৰ্তাবোৰ আনৰ আগত কেতিয়াও নকয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বিদেশত গৈ নিজৰ দেশৰ বিষয়ত সমালোচনা কৰিলে কি লাভ হ'ব? वो विदेश जाते हैं, वहाँ बैठ के, अमेरिका में बैठ के अपने देश को ही भला बुरा बोलते हैं, देश का बदनामी विदेश में कराते हैं। हमारे घर का संस्कार है, अगर हमारे घर में कोई कमी है तो परिवार वाले एक दूसरे से घर के अंदर ही बात करते हैं, सड़क पर जाके बात नहीं करते। ये हमारा हिंदुस्तान का संस्कार है। तो राहुल गांधी जब यही बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनको कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो देश में जाइए, देश के जनता से बात करिए, देश के जनता को समझाइए। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको अवसर है, कौन मना किया? पर अमेरिका में बैठ के इंडिया को गाली देने से क्या होगा? क्या उससे देश का मान बढ़ेगा? क्या उससे देश का कीर्ति बढ़ेगा? क्या उससे देश का भला होगा? 2030 চনৰ পিছত আমাৰ দেশখন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পুত্ৰই চলাব নেকি? দেশৰ ৰাজনীতিত গান্ধী পৰিয়ালক অনুসৰণ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাইহান ভদ্ৰাই ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি? এই কথাষাৰ ৰাজ্যৰ কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই কোৱা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চমুকৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ঋতুৰাজ সিনহাই এই মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধী নে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিব সেই সোধা এক প্ৰশ্ন উত্তৰত কি কৈছিল শুনক। ये नहीं है कि राहुल आएगा कि प्रियंका आएगा। देश का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस इतना पुराना पार्टी है, इतना बड़ा पार्टी है, देश भर का पार्टी है। क्या कांग्रेस में गांधी फैमिली को छोड़ के एक भी लायक आदमी नहीं है क्या? पहले इंदिरा गांधी होंगे, फिर उनका बेटा राजीव गांधी होंगे, फिर उनका पत्नी सोनिया गांधी जी चलाएंगे, सोनिया गांधी जी के बाद उनका बेटा राहुल जी चलाएंगे, राहुल जी नहीं चलाएंगे तो उनका बहन चलाएंगे। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि कल प्रियंका गांधी जी का जो बेटा है उसको डिक्लेयर कर दिया क्या कि 2030 के बाद वो चलाएंगे? अरे भाई, ये देश में 140 करोड़ आदमी है,
बहुत काबिल आदमी है। एक परिवार को देश चलाने का जरूरत नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आसाम में बहुत मजबूत पोजीशन में है। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে কি ক'লে শুনক। हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम में जो काम कर रहे हैं उसका उदाहरण हमारे पीछे ये मॉडल स्कूल है। इतना सालों साल में चाय बागान का 200 साल में चाय बागान के जो लोग थे उनके लिए कोई चिंता किसी सरकार ने नहीं किया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार है कि आज चाय बागान में भी स्कूल बन रहा है, मॉडल स्कूल। चाय बागान में भी हेल्थ सिस्टम आ रहा है, स्वास्थ्य सेवा आ रहा है। चाय बागान में भी सरकार का सड़क बन रहा है। चाय बागान के मजदूर का तनख्वाह 3 बार बढ़ाया है। और ऐसे अनेक चीज चाय बागान के लोगों के लिए किया है, अन्य लोगों के लिए किया है, पूरे असम के जनता के लिए किया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार बुलंद है, भाजपा बुलंद है और ठोक के जनता का सेवा करने के लिए तत्पर है। নিউজ ডেস্ক, নিউজ ৱাইড অসম।